Assalamu alaikum everyone. Good morning, good afternoon, good evening from whichever time zones you are right now. Thank you very much for joining. और हम आपके सामने आ गए हैं with the first of the series Game Edge. That is a mentoring effort by the alumni from the College of Medicine and Dentistry. The first of the session series का ऐसे नाम से हमने इसकी थीम बता दी है to help out our younger colleagues. कि जो पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, they are graduated, they have graduated, they're about to graduate, and how can we as the seniors help them? So we have a wonderful panel with us today. First of all, I'll begin with thanking Dr. Ali Sayyed from the batch of 2000 for pushing us कि हमें ऐसी पे एक्टिविटी करनी चाहिए where we can be of more value and more help to our juniors. And thank you to our three speakers. First of all, we'll have Dr. Madiha Ali. She is a graduate of 2010, FCPS General Surgery, MRCP Glasgow, and currently she's working as a fellow trauma surgeon at Aga Khan University Hospital in Karachi. Second one, we'll have Dr. Salman Mansoor. He graduated in 2009. He's a member Royal College of Physicians Ireland, member Royal College of Physicians and Surgeons Glasgow, fellow European Board of Neurology. He has trained in FCPS training he received from Shifa in neurology. And only a couple of days ago, he has also been awarded the certificate for fellow Canadian Stroke Consortium. And he is among the 19 people around the globe who have had the certification. So proud moment for him, of course, and for him that also. Then we'll be talking to Mushtaba Muhammad. He is a graduate of 2003. MCPS, FCPS Psychiatry. He also has a Masters of Science in Biological Psychiatry, Diploma in Health Professional Education, Diploma in Mental Health Policy from WHO. He has worked in university in UHS Lahore previously, and currently he is Head of Department and Professor at Gulab Devi Hospital in Lahore. सारी जो इस एफर्ट का मकसद यही है कि हमारे जो जूनियर्स हैं जो कि जस्ट अबाउट टू स्टार्ट देयर करियर्स, तो अगर वो एफसीपीएस या एमसीपीएस या पाकिस्तान में किसी किस्म की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दे आर थिंकिंग अबाउट इट, तो व्हाट आर द टिप्स और गाइडेंसेस दैट दे कैन हैव फ्रॉम देयर सीनियर्स. सो विल स्टार्ट ऑफ विद डॉक्टर मदीहा अली. Dr. Madiha, first question, like fourth year, final year students or anyone who has just graduated or finished their house job, from the medical college, from the clinical years, what should they be doing? How should they be planning about it? A student, what are the things that he or she should be doing? Dr. Madiha. So basically, the sooner the better. तो आप जितना जल्दी, बहुत प्रेशर नहीं लेना इस बात का, लेकिन आप जितना जल्दी इस बात के ऊपर रियलाइज करना शुरू कर देंगे कि ग्रेजुएशन के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन फील्ड या फॉर दैट मैटर कोई एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना होगा, बी इट क्लिनिकल हो, नॉन क्लिनिकल हो, तो जो भी फील्ड को सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आपने अपना होमवर्क स्टार्ट कर देना है, मे बी फ्रॉम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर. जब आपके क्लिनिकल स्टार्ट होते हैं, यू गेट एन आइडिया ऑफ कैसे, हाउ इट इज ऑल अबाउट. सो इस तरह से जिसके अंदर कुछ चीजें हैं कि आप अपने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के क्लिनिकल रोटेशन से आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप किस चीज, व्हाट अट्रैक्ट्स यू. एक तो चीज ही हो गई. फिर उसके बाद होता है कि आपके समर ब्रेक्स होते हैं, जिसमें बहुत मेजोरिटी हम सब यही करते हैं कि हम इलेक्टिव्स लेते हैं. जो इलेक्टिव रोटेशन होती हैं, आप जाके किसी और हॉस्पिटल में करते हैं. उसके दो बेनिफिट्स हैं. एक तो ये है कि आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसमें जब काम करते हैं, उस फील्ड में क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं उसे, तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या ये जो आपकी फील्ड सिलेक्शन है ये आपके लिए कितनी सूटेबल है. दूसरी चीज ये होती है कि यू गेट टू सी अदर रोटेशंस एज वेल, जो मे बी आपके उस सेटअप में नहीं हो रही है, एंड आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो दिस इज वन वेरी गुड वे ऑफ thinking and start to thinking about what field do you want to pursue. So इसमें फिर ये है कि you have a carry on.
सो बेसिकली होता है कि जब आप ये चीजें सोचना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू फिर मैनिपुलेट देम एंड यू हैव टू आंसर दोज एंड उनके बारे में आप उनके अराउंड काम करना शुरू करते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ्स देखते हैं, आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप देखते हैं कि क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ आपको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती है। तो जब ये कुछ चीज़ों के आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको समझ में आने लगता है कि व्हाट एक्चुअली इज द फील्ड जो आपको जिसकी तरफ आप जा रहे हो। एंड फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गाइडेंस है। आपके क्लिनिकल ट्यूटर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपके सीनियर्स आपको गाइड कर सकते हैं, अलमनाई ग्रुप हैं, ऐसे बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम योर अलमनाई कॉलेज, बाकी और जगहों पे भी। तो, तो उनको आप देखते रहें, उनको सुने। इस तरीके से यू विल गेट एन आइडिया कि क्या चीज़ है जो जो आपको बहुत सूट करेगी। लेकिन ऑब्वियसली ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो जैसे आप प्लान कर रहे हैं। तो उसमें विद टाइम चीज़ें इवॉल्व होंगी। आप Okay. 4th ईयर में शायद कुछ और सोचे होंगे, आप फाइनल ईयर की रोटेशंस करेंगे, आपको कोई और चीज़ अच्छी लगने लगेगी, आप हाउस जॉब में जाएँगे, आपको कोई और चीज़ अच्छी लगने लगेगी। लेकिन प्लानिंग से इट हेल्प्स यू टू नैरो डाउन योर चॉइसेस कि आप किन चॉइसेस पे काम करना चाह रहे हैं। इंस्टेड कि आप ग्रेजुएट होके निकले और आपको पता ही ना हो कि आपने क्या करना है, किन में रोटेट करना है, किन में नहीं रोटेट करना। तो Okay. अगर आपने So अपनी the नैरो डाउन की है रोटेशंस के आपने ये चीज़ें मुझे इंटरेस्ट रखती है मेरी, सो आप अपनी हाउस जॉब में उन रोटेशंस को करने से आपको ये फायदा होता है कि आप फिर ज़्यादा क्लोजली उसमें काम करके आपको ज़्यादा पता चल जाता है कि वेदर वो सूटेबल है आपके लिए या नहीं। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो आपको 4th ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में हेल्प करते हैं। So the key is कि you have to start thinking early. लेकिन क्या आप इस decision को, it's not a wise approach कि आप हाउस जॉब के बाद सोचना स्टार्ट करें कि मुझे क्या करना है. So the sooner you start, the better is. अच्छा, for my participants, I would suggest कि आप लोगों के पास दो चीजें कीजिए. सबसे पहले तो सब लोग अपने माइक्स को कोशिश करें कि म्यूट रखें, क्योंकि बैकग्राउंड आपका साउंड नहीं तो आता है एकदम से. You have any questions at any moment for my participants, आप chat box में kindly अपने questions लिखते जाइए, then we will start picking them up from there and we'll address them inshallah. Okay, Dr. Salman, let's so you are in, you have done FCPS part 1. First of all तो आप ये बताइए ना, FCPS part 1 how do you approach it? कौन सी फील्ड लेनी चाहिए? लाइक इट्स सम काइंड ऑफ कि आपने पहले सुन लिया नहीं मैंने मेडिसिन ही करना है या क्या करना है? What is the process? How you reach FCPS 1 and how do you start looking for the residency programs? Thank you, Zahir, for the interesting and very kind introduction. And I would definitely sort of dissect what Madhya has said. And my main focus and my area to speak on would be after graduation, what are the main interesting areas which somebody who has just recently graduated should think about and ponder on. So first question after graduation, which for me was also sort of tricky, was day one, should I start internship or should I not start internship? So because this whole theme, today's theme is not on Canada, it's not on UK, it's not on Ireland, it's on Pakistan. So I was at the time in Pakistan, and what made me sort of decide between this question, which was the first question after graduation, that should I start an internship or should I not start an internship? So first thing which I would always advise anybody who is a junior or who is just graduated, I would advise everyone, despite whatever your financial circumstances are or whatever your future aims are, you should do a house job. So house job के pros क्या हैं कि why should you, one who is just graduate should complete a house job? I think you secure your future in Pakistan after doing a house job. जो सबसे important चीज है कि you have a provisional medical license once you graduate, and that provisional license is not converted into a permanent medical practitioner license unless you opt to do a house job. So few of my colleagues who did not do a house job initially, what I found that later on down the years, they came on and they said that, look, we have exhausted our other options
and now they were reverting back to coming and doing the house job after realizing this thing a couple of years later. So what happened as a con was that their precious time was lost at that time, or I think they regretted that sort of decision. I mean, myself, I wouldn't be in a very pleasant sort of like mood if I decide after 5 years, okay, so I should now start doing a house job. And there could be various reasons. When you first complete your graduation, you have these high aims. You're just thinking, okay, fine, हमने तो US assembly करना है और हमने तो US अगले दिन US से निकल जाना है या हमने कहीं और निकल जाना है. तो लेकिन जो reality check होता है, I think that has to be something जो कि जब आपका पहला फेलियर होता है या आपका पहला, जैसी आपकी ग्रेजुएशन के बाद व्हेन यू कम टू द फील्ड, जो आपको पहली चीज पता चलती है वो आफ्टर मेकिंग अ बैड चॉइस पता चलती है. तो ये मेरा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है. डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग और शुड आई कंटिन्यू विद माय? I think that we'll come back to you. I think this is the key point के मतलब ये I remember जब मैं पास आउट हुआ था तो we had this issue with our batch also. People compromised on doing house job के जी बात हुई कि मैंने US जाना है, वहाँ चाहिए नहीं होती ये वो. But what this is again, this could be my understanding only. आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अपनी बेस को पहले मजबूत कीजिए, then think about other places. I'm not discouraging कि आप ना करें, but you never know how the future shapes up, कि क्या issues होते हैं, visas के issues, क्योंकि हमारे बैच में पता है a lot of people got stuck with the visa issues. So that was a big issue at that time. Mujtaba is a FCPS examiner himself. Mashallah say he has a lot of graduates under training. So Mujtaba, how is this FCPS program? मतलब जो बाहर बैठे हैं उनको पता नहीं जी क्या तंदूर की आग है अंदर के, क्या होगा हमारे साथ. हाँ, प्रोग्राम मुश्किल है, इजी है? What's the key to success to successfully go through this program as an examiner, as a teacher? What are your advices on it? आप म्यूट पे हैं मुश्तबा, you're on mute. वो मैं actually I was trying to be very nice कि मैंने कहा मैं मेरा आवाज ना आए, I was muted and उसको पता नहीं. और आपको पता है क्या with computers, वो आपको पता लग गया होगा कुछ दिनों. जो चीज मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, वो ये है कि जिस तरह मदीहा ने कहा कि you have to decide what you want to do. First you have to decide where you want to go. सबसे पहले ये, with every person dynamics are completely different. Some people say कि because of my family issues I have to stay home, I have to stay in Pakistan since I am the only son, so I have to stay here. या since I am the only earning person, तो मुझे यहाँ रहना है, या मुझे फलां की हेल्प करनी है, things like that. So you have to decide. Everyone wants to go out. ये तो हम सबको पता है. And nobody wants to stay in Pakistan. ये भी हम सबको पता है. लेकिन as Dr. Salman said कि reality check is कि only a few people will go and very few of them will stay there for a longer period of time. अब बहुत सारी myths हैं FCPS ट्रेनिंग के बारे में, और मेरा ख्याल है कुछ उसमें से जायज भी हैं. ये नहीं है कि सब myths हैं और there nothing of them is true. पंजाब और KPK में things have changed. Now they say कि वो central induction करेंगे. Now central induction is a bit different and bit complicated in a sense कि you have to have scores. Scores क्या है कि इतने points आपने लेने हैं, 65 या 70 points आपके होंगे, तो then you will be able to get a residency. Okay. Residency of choice आपको अगर लेनी है तो you have to have higher scores. अब स्कोर्स में जो चीजें मैटर करती हैं वो आपके प्रॉफ में सप्लियां मैटर करती हैं, जो मेरे ख्याल हम सबकी थी. एक वो चीज मैटर करती है. दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने BHU में काम किया या नहीं, बेसिक हेल्थ यूनिट में काम किया या नहीं. 2 years of basic you get 15 points. That's a huge number. If you have, or this is something which I would recommend everyone at this stage. बहुत सारे प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट्स के पास टाइम नहीं होता रिसर्च करने का.
तो if anyone of you volunteers for a research कि मैं research मेरे नाम भी आ जाए और मैं उसमें research थोड़ी कर भी लूं, तो research has got lots of points. With every research paper you have 3 points. ठीक है? So अगर आपके 3 papers भी हैं या तो you're getting 10 extra points. हम सब प्राइवेट के हैं, हमदर्द इज अ प्राइवेट एंटिटी, तो वो उसके भी मार्क्स कम हैं. सो हमें पहले ये समझना है कि वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जिनके मार्क्स ऑलरेडी ज्यादा हैं, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ज्यादा है हमसे. Okay, ज्यादा है, सर ज्यादा है. Private colleges start off from a lower marks. Yeah, this is new for me. Okay, all right. उसकी वजह ये है कि मैट्रिक और एफएससी दोनों के मार्क्स काउंट हो रहे हैं, और आपके जो एग्जाम है उसके भी मार्क्स काउंट हो रहे हैं. Okay. उनके भी मार्क्स है. सो ऑल यू आर एट डिसएडवांटेज, हम डिसएडवांटेज पे हैं. With Sindh and Balochistan, Dr. Madiha will tell you better because I don't work there, so मुझे डिटेल नहीं पता, and she'll probably tell in details about it. वहाँ पे easy है, but in Punjab and KPK things are very different. Okay. और आपको अच्छा, अब जब आप सेंट्रल इंडक्शन चले जाते हैं, once you have applied for central induction, पोर्टल होता है हमारा एक पंजाब का और KPK का पोर्टल है. You enter your details in it, और आपको आपको आपके स्कोर्स बता दिए जाते हैं. And then it's the government's choice कि आपको जिस जगह पे वो ट्रेनिंग दे दे, be it in मुल्तान, be it in बहावल, आपका मेरिट है, जहां पे आपका मेरिट है वहां पे आपको मिल जाएगी. So it's same जैसे पहले मेडिकल कॉलेजेस का होता था गवर्नमेंट का कि जहां आपका मेरिट बना है. तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इज आल्सो on those lines now. Okay. बिल्कुल. Okay. अब इसी चीज जो कि मैं सलमान की बात में, डॉक्टर सलमान की बात में ऐड करूंगा, पीएमसी हैज चेंज्ड रेगुलेशंस, और अब ये जो हमारी लॉट है, they'll probably be going through PMC's thing. तो उसमें ये है कि आपके एक एग्जाम तो आपका कॉलेज ले रहा है, ठीक है, फिर एक एग्जाम जो है वो पीएमसी अपना एग्जाम ले रहा है फाइनल ईयर के बाद, ठीक है. 1. फिर होल ईयर ऑफ हाउस, जिसके बाद एक एग्जाम पीएमसी और ले रहा है. ओके. हाउस जॉब के बाद एक और एग्जाम है, ठीक है. हाउस जॉब के बाद क्लिनिकल एग्जाम है. ओके. एंड देन यू विल बी अवॉर्डेड अ पीएमसी डिग्री, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की. ओके, ऑन द सेम लाइंस, क्योंकि अब ये चीजें जब किस जमाने में 1960 में मैंने किया था एमबीबीएस, उस वक्त थिंग्स वर ऑब्वियसली डिफरेंट. Why do they have so much exams? They have क्या किस चीज, what are they trying to do? इतने आप हाउस जॉब के बाद भी दे रहे हो, फाइनल के बाद भी दे रहे हो, what are they trying to do? और ये भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए एक जैसा है कि is something different for private institutes? अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज अ वेरी पॉलिटिकल इशू. हुआ ये है कि बिकॉज गवर्नमेंट वाज क्रैकिंग डाउन ऑन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मेड श्योर कि दे back with this. अभी PMC is basically an institute जहां पे they don't care कि कौन सा मेडिकल कॉलेज है, they don't care कि उसके इंडक्शन पॉलिसी क्या है, they don't care कि उनके मार्क्स क्या हैं, they don't care कि उस 4 years 5 years of medical education उन्होंने क्या किया है. Nothing will be checked. Okay. The only thing which will be checked is at the end of 5 years. Just like steps एग्जाम दे रहे हैं. Okay. ठीक है, आप 5 साल जहां से मर्जी पढ़े, चाहे 4 कमरों का मेडिकल कॉलेज है, चाहे. तो हमें ये समझना चाहिए दे आर ट्राइंग टू मेक प्लेइंग लेवल फील्ड सबके लिए एक जैसी के आफ्टर जैसे मर्जी आप पढ़ के आ जाएं, लेकिन उसके बाद यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑन. ओके. और डॉक्टर मदिहा, यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट सिंध में. क्या यही पॉलिसी है कि सिंध के लिए कोई डिफरेंट इंडक्शन पॉलिसीज हैं? सिंध और बलोचिस्तान में अभी तक सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं हुई है. सो वी स्टिल हैव दैट ओल्ड सिस्टम जिसमें आप इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को अप्लाई करते हैं और फिर उस प्रोग्राम के थ्रू या उस हॉस्पिटल के थ्रू या उसके एचआर के थ्रू आप इंडक्ट होते हैं, और उसका जो भी प्रोसेस है इंडिविजुअल सिस्टम का. सो मेजॉरिटी के अंदर रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है, एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू जिसको क्वालिफाई करना होता है, फिर आप सेलेक्ट होते हैं. So both Sindh और बलूचिस्तान. You go to private institutes, उनका अपना सिस्टम है, गवर्नमेंट का अपना जो भी पुराना, मतलब उसी तरह वो चल रहे हैं. मेजॉरिटी का यही है कि they announce an induction date और उसके accordingly फिर वो written test and interviews. Okay, we have a very interesting question. I would like Salman, you
कैन रिस्पॉन्ड टू इट फर्स्ट, और बाकी दोनों भी लोग भी जो इसके बारे में कहना चाहें। हाउस जॉब के बारे में समवन वांट्स टू नो कि जी कहा ही जाता है, लेट मी समराइज द क्वेश्चन, कि आप हाउस जॉब करें किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में दैट इज टॉप एंड, जैसे कराची में लेट्स से आखान है या टू सम एक्सटेंट लियाकत है, पीपल ट्राई नॉट टू डू इट हमदर्द के जी वहां पे पेशेंट इन्फ्लक्स कम है, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स कम है, सो इफ यू वांट टू डू प्रॉपर हाउस जॉब तो आप किसी हाई एंड इंस्टीट्यूट पे जाएं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं वेयर देयर इज लेस इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट and you have more time to study for part 1 and planning. So what's your take on it? Yeah, so I can just give an answer because this is a very valid question, and it was at that time in my head as well that well, what's the proper way to do house job? Yeah, what is the proper institute to actually complete your house job? So कुछ लोगों की अपनी personal choice होती है, मतलब personal choice is like some people like working in a government setting. For me, I did my house job in Aachen, and so for me, initially, I used to sort of like go to the private setups and private centers because I felt that there was a safety net over there. Okay. So this is my personal opinion. It can be different. I feel that उसके बाद after Aachen internship करने के बाद, when I was deciding about even doing my national residency, so that question came up again as well, that should I go to a private center or should I go to a general center? So basically Pakistan mein, when I realized the logistics of patient management, and because I chose neurology as my personal choice, so I had to look at certain things कि कौन से ऐसे centers हैं जहाँ पे CT scan है, कौन से ऐसे centers हैं जहाँ पे MRIs है, कौन से ऐसे centers हैं जहाँ पे nerve conduction study होती है, neurophysiology होती है, EEG होती है। तो वो आपको गवर्नमेंट सेटअप में बहुत ज्यादा उसमें लैग मिलता है। गवर्नमेंट सेटअप में नो डाउट आपको जो है केसेस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, यू विल सी एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ कंडीशंस, आपके पेशेंट इन्फ्लक्स बहुत होगा, ओपीडीज आप 100 लोगों की कर रहे होगे। लेकिन व्हाट आई फेल्ट एज अ क्योंकि चैट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्टिव्स के बारे में भी, तो आई वाज एक्चुअली डूइंग so when I was a final year student, so I used to go to Jinnah Hospital after my college hours, and I used to spend time in the emergency. So मेरी जो final year थी उसमें 8 से 9 महीने what I used to do was in शाम में मैं emergency में जिन्ना की चला जाता था। तो मुझे थोड़ा सा वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो था वो मिल गया एक्सपोजर। तो उससे ये हुआ कि एक तरफ तो ये हुआ कि आई डिड सी इट इन सॉर्ट ऑफ लाइक मोर डेप्थ, और फिर उसके बाद जब मैंने आखान में इंटर्नशिप की तो आई फेल्ट कि नहीं यार, आई हैव टू गो इनटू अ प्राइवेट सेटअप, एंड मैंने जो है आगे जो है प्राइवेट सेटअप में ही वो करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि गवर्नमेंट में लॉजिस्टिकली मुझे वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो कि मुझे रिक्वायर्ड हैं, टूल्स जो मुझे रिक्वायर्ड हैं। For instance, to be a good neurologist, I need to interpret an MRI. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MRI नहीं है तो फिर मैं MRI देखूंगा कब 5 साल के अंदर। तो बेसिकली ये थोड़ी सी चीजें थी जो मुझे वो की। और फिर आई फील कि अगर आपका फर्दर गोल ये है कि आपने पाकिस्तान के बाद कहीं बाहर जाना है, तो आई थिंक द प्राइवेट सेंटर्स आर मोर at with those centers which are better institutes in Pakistan, जैसे शौकत खानम हो गया या शिफा हो गया। So basically what you are saying is कि आप खुद अपने आप को assess करो that what your ultimate goals are, या आप क्या करना चाह रहे हैं। मतलब मुझे I remember at our times, अब I don't know अब हमदर्द में इस वक्त क्या सिचुएशन, लेकिन उस वक्त क्या हमारे बड़ी एक चीज थी हमारे, आपको ECG देखना आनी चाहिए। अच्छा जी, ECG देखना आना चाहिए तो क्या है, go to any government setup in the evening और ज्यादा से ज्यादा ECGs देखें आप। I mean that is obviously a तुरंत के जी अच्छा टूल है कि आप जितनी ज्यादा देखेंगे प्रैक्टिस। So there was some downfall, क्या हम जैसे हमदर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करें तो वहां जो हाउस जॉब करते थे they already had this created in their mind कि हमारे पास पेशेंट्स कम है। Does this affect बदिया, if you can respond to it also, ये जो सोच है, does this affect your clinical practice या clinical approach जब आप house job के बाद let's say you go into some other hospitals, तो does this
does this myth also carry some weightage कि जी आपने वहाँ हाउस जॉब किया है तो you are considered to be less with the clinical approach? ये दोनों तरह की बातें हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी कम वॉल्यूम वाले सेंटर में काम किया और आपको काम करना ना आता हो, और आपने किसी अच्छे वॉल्यूम वाले सेंटर में काम किया आता हो तो आप बहुत ही एट पार हो। इट्स आई थिंक एक इनर वो होती है कि आप कितना काम करना चाहते हैं। कुछ लोग छोटे सेटअप में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं किताबों से, मरीजों को बार-बार देखने से, हर पेशेंट को इन डेप्थ देखने ऐसे। और कुछ लोग बड़े सेंटर्स में भी, बड़े वॉल्यूम्स के साथ भी, अगर इफ दे डोंट हैव दैट इनर ड्राइव तो वो नहीं देखते और वो सुपरफिशियल सा देखते हैं, और ऑब्वियसली फिर उनकी नॉलेज उतनी वो नहीं होती। एंड जो बात है कि गवर्नमेंट सेटअप या प्राइवेट सेटअप या मोर वॉल्यूम सेटर्स, उसमें दूसरी चीज ये होती है कि आपको खुद ये डिटरमाइन करना है अपने लिए, हर, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो अगर जैसे डॉक्टर सलमान बताए थे कि या आप बताए थे, तो हमदर्द के बाद अगर आप कहीं जाते हैं, किसी और सेटअप में जाते हैं, तो बीट इलेक्टिव्स या शाम में अगर चले गए, सो उससे आपको यू गेट एन क्लोज आइडिया कि व्हाट एक्चुअली यू वांट फॉर योर फ्यूचर, एंड क्या आप वो कर सकते हैं जो जो वहाँ पे हो रहा है। सो दैट इज द रीजन के आई ऑल्सो आई डिड माई 5 months of house job from Hamdard, but then I switched to AQ because I went there and I saw there and I felt कि हाँ मुझे वो करना है जो वहाँ हो रहा है, and I was not satisfied. Maybe someone was and maybe someone is not. So Since you ये mentioned पर्सनल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि ड्राइव कितनी है drive आपकी। क्या, okay. Since you mentioned electives, पाकिस्तान में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाना है, how important is electives? Secondly, how to go for electives? मतलब अगर आप फाइनल ईयर में, let's suppose, आप किसको अप्रोच करें डायरेक्ट, मतलब is there any proper way to approach anyone? कैसे electives की क्या प्रोसीजर होना चाहिए? How do you adopt it? So electives बहुत जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप जो है वो तकरीबन CPSP कोई 70+ स्पेशलिटीज में ऑफर करता है। आई डोंट नो इफ ये बात सबको पता है या नहीं पता है। 70+ स्पेशलिटीज, हर हॉस्पिटल के पास 70+ स्पेशलिटीज नहीं होंगी, किसी के पास 20 होंगी, 25 होंगी, 30 होंगी। सो आपको जब तक आप उन सेंटर्स में जाते नहीं, आप उन स्पेशलिटीज को क्लोजली देखते नहीं, आपको पता भी नहीं होता कि इन फील्ड्स में भी FCPS हो रहा है, या आपको पता चलता है कि अच्छा ये इंटरवेंशनल ये फील्ड्स भी हैं, ये फील्ड्स भी हैं, ये फील्ड्स भी हैं। अगर जैसे फॉर इंस्टेंस आप हमदर्द में देखें तो हमदर्द में हमारे पास अभी 2 से 3 फील्ड्स में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग हो रही है। तो हाँ, आप उन ट्रेनिंग को तो बहुत गौर से देख लेंगे, लेकिन बहुत सारे वो फील्ड्स भी होंगे जहाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो आपको नहीं पता चल रहा है। तो इलेक्टिव से आपको फायदा ये होता है कि जब आप दूसरे फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं तो आपके पास अपना फील्ड खुल जाती है, आपकी विजन ब्रॉडन हो जाती है कि आप सिलेक्ट करने में आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंस्टेड के सिर्फ वो जो बिल्कुल जो हम बिल्कुल नैरो माइंडेड टनल विजन में मेडिसिन सर्जरी करते हैं। तो secondly, I would just add up one thing for it कि normally जो process ऐसी है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने, you never know how you end up in future, so it's better to build your CV also. अगर आप fortunately or unfortunately you go out of Pakistan, तो कुछ चीजें हैं जो हम पाकिस्तान में हम CV पे for doctors हम believe नहीं करते, but these are things that they count, those count in your post graduation thing. So I would suggest जो लोग हमारे participants हैं, if you can do an elective, go for it. मुज्तबा सर, आपने कराची हमदर्द, सॉरी आप ऐड करना चाह रही हैं? सॉरी, मैं उसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का आंसर देना चाही थी कि हर हॉस्पिटल का HR या उसका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज अवेयर ऑफ द इलेक्टिव प्रोसेस एंड दे हैव अ होल, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, दे ऑल हैव अ प्री डिफाइंड सेटअप जिसमें आपने यू हैव टू अप्लाई, एप्लीकेशन होती है, वो आपका इंटरव्यू एक छोटा सा कंडक्ट करते हैं और वो आपको इंडक्ट कर लेते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द हॉस्पिटल्स हैव दिस प्री फॉर्म्ड एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, मुज्तबा आपने हमदर्द से कर लिया सर ग्रेजुएशन एंड यू आर लुकिंग फॉर हाउस जॉब, आप कहीं पे पूरे पाकिस्तान में हाउस जॉब अप्लाई कर सकते हैं कि उसके भी कोई सेंट्रल इंडक्शन है हाउस जॉब की भी कि यू जस्ट गो ऑन एनीवेयर वेयर यू वांट टू गो? नहीं, नाउ यू कांट, अब नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब जो है PMC has made it very explicitly clear कि आपने जहां से the college is responsible for your house job now and it has to be a paid house job. okay, ठीक है, so
if you are going to go to another college or another institution जहां पे house job offer हो रही है, you cannot take a paid house job. One. Okay. Two, they can only induct you if वहां पे जो हाउस जॉब करने वाला है उसने अपनी सीट छोड़ दी है. ठीक है. ठीक है. Okay. Previously it was easy, जहां पे भी आपने अप्लाई किया, you were competing against everyone और easy था. अब it's not. मैंने अगर हाउस जॉब अभी की है, अब मैंने अभी ग्रेजुएशन की है from हमदर्द, तो next 1 year I have to stay in हमदर्द and हमदर्द has to pay me. Okay. ठीक है. अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हमदर्द से, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं सखर से हूँ या मैं बहावलपुर से हूँ, मैं अब बहावलपुर वापस जाके करना चाहता हूँ, तो देन आई नीड टू मेक श्योर कि मैं जब जाऊं तो वहां पे मुझे पेड की जरूरत नहीं मिलेगी. लेकिन वहां पे अगर कोई लड़का या लड़की छोड़ देता है, हाउस जॉब नहीं करता और वहां पे उसने वो जॉब सीट वेकेंट है, देन ओनली ही कैन अप्लाई, देन ओनली आई कैन अप्लाई. Okay. एक चीज ये. दूसरी सॉरी, Participants kindly अपने mics mute रखिए. जी, carry on. अर्जुमन खान, उन्होंने कहा कि मैं अर्जुमन खान, आपका माइक ऑन है. दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है बड़ा, वो ये है कि सिंस नाउ यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम आफ्टर हाउस जॉब एज वेल, सो इट इज कॉलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आपको ट्रेनिंग थ्रू आउट दे. एंड नाउ यू कैन नॉट डू 5 or 6 months हाउस जॉब, इट हैज टू बी 3 months ईच, 4 सेक्शंस, एंड यू हैव टू डिसाइड वो 4 डिसिप्लिन जिसमें आपने 3 months. आप 6 months अब नहीं कर सकते. पहले हमारे जमाने में इट वाज 6 months, 6 months एक, 6 months एक, and then so now it's 3 months, and 3 months you have to rotate. Okay. 5 marks का someone is asked about, does those 5 marks get in, जो आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में करते हैं 5 marks, do they count towards ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हेल्प आउट करते हैं? आर दे इंपॉर्टेंट? 5 marks हैं when you do house job in your parent institute, are they considered important? Should we go for it or should we just take a risk? Yes. नहीं, if that person is from Punjab और वो या KP के जहाँ पे ये सारी चीजें हैं, तो you must do it from your parent institution. आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे and you have to get your marks. आपके अगर मार्क्स पूरे नहीं हो रहे, आपको अच्छी जगह पे रेजिडेंसी नहीं मिल रही, ऊपर वाली रेजिडेंसी सारी बुक हो जाती है. How do you decide अच्छी रेजिडेंसी क्या है या बुरी रेजिडेंसी क्या है? Since you अच्छी रेजिडेंसी बड़ी इजी. अच्छी रेजिडेंसी पंजाब में 3 जगहों पे, पिंडी, लाहौर और मुल्तान. ठीक है. उसकी वजह ये कि सवाल में ये कि वहां पे पेशेंट इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है. आप इन टर्म्स ऑफ पेशेंट इन्फ्लक्स की बात कर रहे हैं कि वहां की फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि लिविंग कंडीशंस के हवाले से बात कर रहे हैं कि जिसको आप कहें कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं, so इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ. Like someone, as you said, in Bahawalpur में है, why should he go to Lahore or for that matter Rawalpindi or somewhere else? Merit बनता है for every institution based on the record of that institution. ठीक है. तो वो merit के ऊपर आपकी स्कोरिंग होती है. If I live in, for example, रहीम यार खान, तो मेरे लिए पिंडी और लाहौर is not feasible, तो मेरे लिए तो लो स्कोर भी बहुत है. ठीक है. लेकिन ये हम जनरल चॉइसेस की बात कर रहे हैं, तो जनरल चॉइसेस में यू हैव टू हैव हायर स्कोर्स. Okay, just for the sake of understanding, what do you call a higher score? Plus 80, plus 70, कोई range कोई है कैसे होनी चाहिए higher, or is it as high as possible? Last year, since I'm in psychiatry, so I can tell you in psychiatry, the last person who got inducted had 65 score. Okay. Out of 100. Okay. That's a. Okay. There's a question for Salman. कि आपने mention किया कि before you graduated, you had some exposure of doing these electives and everything. जो electives की हम बात करें, बार हम इस पे stress कर रहे हैं, ये जो experiences आप करते हैं, how do they affect in choosing a path for post graduation? You just do it for KG for these marks or something, or for an KG मैंने electives किए हैं, you have to just tell someone कि मैं वहाँ electives कर रहा हूँ, or how do they affect their decision?
Yeah, interesting question. Exactly, electives. What my approach towards electives was that when I was a medical student, जब मेरी summer vacations होती थी, तो मैं कराची से इस्लामाबाद जाता था. इस्लामाबाद में I used to every year महीने का मैं शिफा में इसी तरह PGME जाके मैंने radiology में electives किया था. ये इमरजेंसी में इलेक्टिव्स किया था RGH से. तो बेसिकली सिर्फ अपने आप को वाइडन करना होता है अपना होराइजन, जस्ट टू सी यार बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, and just to have a productive time, you know, if you're just sitting at your home and you don't have any other मतलब interesting हैबिट या कोई हॉबी नहीं है, तो आप जाओ जाके हॉस्पिटल में चले जाओ. जैसे अगर मैं अपने आप को रेट करूं तो मैं तो बोरिंग किस्म का आदमी था. So I used to go and sort of like, you know, for a month or two. Or basically, I didn't had a specific preference मैंने किस में करना है. जब as a fourth year final year student होते हो तो radiology आप कहते हो अच्छा यार मैं x-rays देख लूँ, मैं ultrasounds देख लूँ. तो इस तरह के आपके उस वक्त ख्यालात होते हैं, मतलब क्योंकि आपकी थॉट जो होती है उस वक्त मोल्ड हो रही होती है. So I felt that was a good thing to in future to select what I wanted to do. So definitely electives जितने आप करोगे, you will figure out कि यार आपकी सबसे ज़्यादा sort of strong preference या strong fascination किस field के साथ है, या किस what career path you want to choose. So I think electives should be done, and electives should be done with an open mind. And the whole thing should be like, you know, okay, I'm just over here for a month. I'm just exploring this field to see whether I will fit in it in future. So I think that is the main point. और बाकी marks आपके डेफिनेटली वो काउंट होते हैं आगे. ये हमारे वक्तों में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो प्राइवेट से शिफा से किया है. तो आई डोंट नो कि सेंट्रल इंडक्शन पाथवे के थ्रू जो है कोई प्राइवेट कॉलेजेस तो उसमें नहीं आते. प्राइवेट कॉलेजेस का तो अपना एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है इफ यू वांट टू डू अ रेजिडेंसी ओवर देयर. तो उसमें आई डोंट थिंक कि इस तरह के कोई मेरी बारी में तो कोई इस तरह की स्कोरिंग नहीं थी. डिपेंडेड अपॉन माय इंटरव्यू, माय होल सॉर्ट ऑफ सीवी वगैरह. और डेफिनेटली आपको थोड़े से बेसिकली electives help you to think out of the box कि आप खाली एक ही नहीं कि बस जनरल सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, या कुछ आप I mean it's better to explore around. डॉक्टर मदीहा, electives कितनी देर के होने चाहिए मिनिमम? It should be days, it should be weeks, it should be months, it should be like जो आपको ऑफर हो कि क्या है उसका? यूजुअली जो ऑफर्स होती हैं, यानी जो हॉस्पिटल के जो मैं जैसे बताई थी कि उनके प्री फॉर्म्ड होते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक्स का होता है, बिकॉज दैट इज द टाइम यू नीड एक्चुअली टू काइंड ऑफ लर्न. एंड देन ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने एक ही दिन में सब कुछ सीख लिया. तो आपको कुछ टाइम वहां पे सेट होने में लगता है, कुछ टाइम आपको सीखने में लगता है, एंड देन इवैल्यूएट करने में लगता है. तो आई थिंक 4 to 6 weeks इज एन आइडियल टाइम जिसमें आप यू एक्लिमेटाइज विद द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑब्वियसली आप नई जगह जा रहे होते हैं, आपको नया हॉस्पिटल है, नई सारी चीजें. सो 4 to 6 weeks मे बी इज एन आइडियल टाइम कि जिसमें आप सीखेंगे भी नई चीजें, आप जगह भी नई एक्सप्लोर कर लेंगे. सो आई थिंक दैट इज 4 to 6 weeks. Okay, 4 to 6 weeks minimum. Okay, Mushtaba, coming back, revisiting the same question again. House job, Hamdard se graduation ke baad someone wants to do house job from a government setup within Karachi. So what क्या possibilities हैं? How does this affect his future prospect? या क्या marks की जो आप बात कर रहे हैं, what does he lose or what does he gain? अच्छा, आखान does it. आखान के पास बहुत सारी slots है extra for house job, क्योंकि आखान के graduates are 150 और उनका जो setup है that can have at least 300 at one time. So they offer it because they have their own test and they have their own induction process. But that's a private thing. Okay. So Akhan is anyone is interested. Okay, Dr. Madiha and Salman, you can jointly address this question. Post-graduation options क्या हैं? FCPS, MCPS, MD, MS. If you can like briefly talk about them, कि क्या pros and cons हैं इनके? Are they worth it? कि सिर्फ FCPS ही करना है? So your take on it. Yeah, so I think Madhya, if you allow me, I can take it
first, and you can go second. So I think yes, हमारी अभी जो talk हो रही है वो काफी FCPS directed हो रही है, but I think in Pakistan there are a lot of options, and I think जो main I would divide these programs would be into first tier programs and then second tier programs. First tier programs में I would rate FCPS, साथ में MS और MD programs जो होते हैं that are also sort of first tier programs, क्योंकि ये 5 years के या 4 years के programs हैं, and they are like lengthier as opposed to somebody who is doing an MCPS or a DCPS program. तो सेकेंड टायर प्रोग्राम्स में MCPS आपका आ जाता है, जो कि मोस्टली 2 साल का होता है. DCPS कुछ फील्ड्स में 1 साल का है, कुछ फील्डों में पहले होता था, अब तो होता भी नहीं है. थर्ड थिंग जो है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स हैं फिर, जिसमें पब्लिक हेल्थ के MPH हो गए, आपकी फार्मास्यूटिकल साइंसेस की तरफ इफ यू वांट टू गो एंड परस्यू, और जो उसके अलावा जो है ये अलाइड स्पेशलिटीज के अलावा एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं which are also high tier programs if somebody is interested, like PhD programs and MPhil programs, and that are they are actually they're very nice universities at biological sciences level. जैसे NUST हो गई, NUST has some wonderful क्योंकि आप Nabira Khan, if you can just keep your mic muted. जी. Yeah, so just to summarize it, just for your sake, first tier programs and second tier programs in a clinical field. So basically, and they mainly depend upon the duration. और फिर ये डिबेट आ जाती है कि यार MS बेहतर है, MD बेहतर है, FCPS बेहतर है. So I don't wanna go into the politics of it, and everybody knows कि यार there are certain pros and cons. Pros and cons. ठीक है. Madiha, you would like to add something, right? Just Dr. Salman कहते, so basically is first tier, second tier इस तरह से ही है. So जो medical universities हैं, they have the authority to provide you degrees of MS or MD, which is masters in surgery and masters in master in surgery, and the MD is, I don't know, I can't recall. Doctor of medicine. Doctor of medicine. Doctor of medicine, sorry. And so and iske alawa there's another field which is MCPS, which is for which is, I think it's a 2-year program, and it's also ये. So basically आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या चीज, आप कितनी लेंथी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपकी बाकी कमिटमेंट्स कैसी हैं, घर के हिसाब से कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें. So medical universities are offering MD and MS. अगर आप कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे दो तरह के प्रोग्राम्स हैं. FCPS, which is a 4-year, 5-year, 6-year program, and then MCPS, which is usually a 2-year program. Okay. On the same lines, Mushtaba, I'll come to you. जो अब नई एक और चीज डेवलप कर रही है with these MD MS programs by the medical universities, they say कि ये CPSP के, I'm asking you because आप CPSP का मामला जरा हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं. They are trying to build a program that is exactly parallel to CPSP. CPSP is just a degree awarding institute itself. They don't have a medical university. And what these universities are trying to do is they are trying to break the monopoly of CPSP upon certain of these things. CPSP के बगैर, how do you look these programs coming into play? MS, MD जो medical universities करवा रही हैं. ज़हीर भाई, 2 बातें हमें यहाँ समझनी है. I actually, when I was chairing the Department of Behavioral Sciences in UHS, तो हम MD program करवा रहे थे. I designed the MD program there in University of Health Sciences. तो I know the ins and outs of it as well. एक चीज पहले adding to Madiha and Salman, जो चीज हमें समझनी है कि first of all, we need to know what FCPS is. FCPS is a diploma, major diploma. ठीक है? MCPS is a 2 years program. FCPS can be 5 or 4 years program. FCPS के अंदर आपको एक एग्जाम देना है, intermediate module after 2 years. जिसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपने आगे किस स्पेशलिटी में जाना है. और अगर आपने सब, फॉर एग्जांपल, if I have done surgery में part 1,
and I have मैंने 2 साल जनरल सर्जरी में काम करना है. Then I will do my intermediate module जिसे हम बोलते हैं after 2 years. और उसके बाद if I want to continue surgery तो मैं फिर 2 साल further उसी में लगा के then I'll do part 2. अगर मैंने किसी सब स्पेशलिटी में जाना है, फॉर एग्जांपल आई लाइक प्लास्टिक सर्जरी और आई लाइक ऑर्थोपेडिक्स और समथिंग लाइक दैट, तो मैं फिर 3 साल का उस स्पेशलिटी में जाके काम करूंगा. So that's a 5 years program. Okay. After you are done with FCPS in either fields, तो उसके बाद you are called a consultant. ठीक है. अब आपकी 5 years या 4 years के बाद then you can have your own paths जिसमें आप को किसी भी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट जॉब मिल जाएगी. Okay. MCPS is a 2 years program. ठीक है. 2 years program which Pakistan government does not recognize as a consultant afterwards. Okay. ठीक है. ठीक है. They can only consider them consultants after अगर 2 साल MCPS करने के बाद. MCPS में you don't have the ins and intermediate module नहीं है. You just आपको कोई part 1 नहीं देना. आप सिर्फ MCPS में enroll हो जाते हैं, 2 साल काम करते हैं और उसके बाद आप एग्जाम देते हैं. सिंपल. ठीक है. अब 2 साल के एग्जाम देने के बाद आपने MCPS की डिग्री ले ली. You cannot work as a consultant in any government hospital. ठीक है. If you are interested in only doing private practice तो ये तो बहुत अच्छा है. और अगर आप सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं सुबह शाम तो फिर आप MCPS करें और अपनी इलाके में जाके बैठ जाएं. That's easy. ठीक है. अगर आपने if you want to do a consultant program और MCPS करके ही आप आगे कुछ करना चाह रहे हैं, then you have to do a 2 years further under training. उसे हम registrar under training कहते हैं. वो आप करेंगे and then you may be considered as a consultant somewhere. ठीक है. So MCPS in itself is only considered now. अभी तो पूरी पंजाब में तो it's very clear और पंजाब और KP के दोनों में it's very clear कि they don't no government institution is taking MCPS trainees anymore. कोई भी नहीं ले रहे. ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट करो. तो वो फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं सिर्फ वही करवाते हैं MCPS की ट्रेनिंग. ठीक है. सो एक तो ये बेसिक है जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग FCPS एंड MCPS. अब हम आते हैं FCPS और FCPS का कंपैरिजन विद MD तो बहुत सारे लोग. MD is a degree. MD and NM it's not a major diploma, it's a degree. ठीक है. It's a 5 years program. It's mostly everywhere. It's a 5 years program. और इसके लिए आपको एक पहले एग्जाम देना होता है उसी यूनिवर्सिटी का, which is sort of an easier exam. 2 years के बाद आपको उसी तरह से एक इंटरमीडिएट देना है और उसके बाद आपने 3 years जिसमें बेसिकली वो इंटरमीडिएट इज डिफरेंट. Intermediate में you have to do all the basic sciences in detail regarding that subject. For example, I want to do neurology. ठीक है. और मैं न्यूरोलॉजी में MD करना चाह रहा हूँ. I have to know the basics of extreme things of anatomy के neuroanatomy की और pharmacology की जो psychopharmacology वाला हिस्सा है, then neuropathologies, न्यूरल मेडिसिन, सारी बेसिक्स जो है ना वो फर्स्ट 2 years में कवर होती हैं और उसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव 2 साल के बाद वो एग्जाम होता है. And then for next 3 years basically doing all the clinical work. और clinical work में आपके बाद उसके बाद then you have to appear in the exam. उससे पहले आपको एक dissertation लिखनी पड़ती है similar to dissertation in FCPS. आपकी होती है and then you are able to then you are eligible for the exam for MD. अच्छा, just by default आप इसमें एक comment add. Okay, carry on. साइकियाट्रिस्ट होते हैं ना सर, वो रुकते नहीं बेचारे. हमारा मसला ये बड़ा सर. तो वो जब भी आप किसी भी इंटरव्यू देने जाते हैं, MD holds 1 extra mark in the interview in comparison to CPS all over Pakistan. ठीक है. Because it's a degree. FCPS is a major diploma. अब आप बाकी सलमान do know this के FCPS को हर जगह पे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट
MD can MD have carries one more weightage. mark. Okay, sure. अच्छा, मुझे एक बात मतलब this again is a kind of myth. I don't know current situation क्या है. यार FCPS में एक कहा जाता है लोगों को पास नहीं किया जाता. I mean you just get into the program. आप उसमें attempts देते रहते हैं. Not talking about only medicine surgery में लोग जो myth है, yeah, I don't believe in it. लेकिन जो उसमें easy है करना when you go into sub specialties like जैसे हमारे साथ न्यूरोलॉजी है या कार्डियोलॉजी होगी या फॉर दैट मैटर सर्जरी की बात करें, न्यूरो सर्जरीज हैं, लोगों को पास नहीं किया जाता. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या पास कर देते हैं कि नहीं? या फॉर आई रिमेंबर जब व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज तो जी लाहौर में बड़े मशहूर माशाल्लाह न्यूरो सर्जन थे, तो उनके बारे में कहा जाता था जी 15-20 सालों में उन्होंने एक ही या दो बंदों को FCPS पास किया था और उनमें से एक उनका भांजा या पता नहीं दामाद वगैरह कोई ऐसा कुछ था. डज दैट थ्योरी स्टिल होल्ड? Till 2009 it did. Okay. 2009 के बाद एग्जाम completely changed. Okay. Exam का process, अब exam FCPS Part 2 exam has now become very structured. 2 दिन का exam होता है. Okay. First day आपने 20 OSCE stations आपके होते हैं. Small stations, 5 to 7 minute stations with 20 different examiners. हर station पे examiner बैठा होगा और वो examiner cannot talk. वो आपसे सवाल भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. Just going to observe you perform the thing which you have been asked to perform. ठीक है. I'm sure हमारे सारे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स they know कि what OSCE is, तो मुझे वहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. The next day, and that has a very अगर आप once you clear that और आप बाकी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपका वो that still holds. आप नेक्स्ट एग्जाम में you don't have to go for OSCE. Okay. ठीक है. ठीक है. The next you have to appear in 2 separate systems of exams. एक है long case और short cases. ठीक है. और long और short cases में there are usually 4 short cases and 1 long case. Long case and short cases में long case में you have 2 examiners और वो दोनों independently mark कर रहे होते हैं आपको. ठीक है. और आपके जो एग्जाम उनकी जो मार्किंग है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो इमीडिएटली CPSP इंटरवीन्स, क्योंकि वो आपके मार्क्स के वो सारे उसी टाइम आप सबमिट करवा रहे हैं. तो CPSP इमीडिएटली इंटरवीन्स के एक ने बहुत अच्छा हाई स्कोर दिया और एक ने लो स्कोर दिया, ये क्यों है? तो इमीडिएटली वो सारा इंटरवेंशन वहां स्टार्ट हो जाती है. कहने मतलब ये कि अब ट्रांसपेरेंसी जो है वो अब ज्यादा आ गई है इन दिस एग्जिट एग्जाम एज कंपेयर टू आपके पास एक एग्जामिनर के पास सिर्फ 10% वेटेज हो सकती है. अगर उसने कोई आपके साथ बदला लेना है उसके पास सिर्फ 10% चांस है कि वो. ओके, दैट्स अ गुड थिंग. ओके, सिंस ज्यादा हम डर चुके कराची में, सो वी गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. डॉक्टर मदिया, यू कैन टॉक अबाउट इट. हाउस जॉब करनी है लोगों ने आखन में, सो हाउ डू दे प्रिपेयर फॉर द आखन टेस्ट, और वो किस लाइंस क्या व्हाट शुड दे स्टडी एंड हाउ शुड दे स्टडी अबाउट इट? ओके, सो जो आखन का टेस्ट होता है, इट्स रिटन टेस्ट which is followed by अगर आप हाउस जॉब की बात करें, सो कुछ मिनी OSCE टाइप स्टेशंस होते हैं जिसपे आपका स्मॉल प्रोसीजर्स के ऊपर आप या स्मॉल सिनेरियोज के ऊपर आप जज होते हैं और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है. ठीक है. सो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उसकी प्रिपरेशन के लिए. इट्स ऑल अबाउट वो सारी वही चीजें जो आपने अपने फाइनल ईयर्स में 4th ईयर में पढ़ा होता है. नो स्पेसिफिक कोई बुक्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई कलेक्शन ऑफ कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है. सो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो आपने अपने FCPS 1 के लिए या आप अगर आप रेजिडेंसी के लिए आ रहे हैं तो जो आपने अपने FCPS 1 के लिए पढ़ा हुआ है, या अगर आप हाउस जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपने अपने जो फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ होता है, ऑलमोस्ट वही चीज होती है. द एडिशनल थिंग फॉर हाउस जॉब इज कि उसमें वो कुछ 4 से 5 मिनी टास्क आपको देते हैं. एक फोली इंसर्शन हो गया, या कैथराइजेशन, IV कैनुलेशन हो गई. इस तरह के छोटे स्टेराइल प्रोसीजर्स के बारे में थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए. या कोई एथिकल सिनेरियो आपको वो पुट फॉरवर्ड कर देते हैं कि कोई क्लिनिकल सिनेरियो या कोई एथिकल सिनेरियो जिसमें दे वांट टू नो कि आपकी अप्रोच क्या है, बेसिकली हाउ डू यू अप्रोच, या जो एथिकल वो है जजमेंट है वो कैसी है. सो वो बहुत ही बेसिक्स ही होती हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वो ऑलरेडी हमें उन चीजों का पता होता है.
इसके अलावा उनकी दोनों के लिए रेजिडेंसी एंड हाउस जॉब के लिए उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हर चीज़ के वेटेज है। सो अगर आप हाउस जॉब के लिए कर रहे हैं तो आपका फाइनल ईयर का स्कोर क्या है, आपका रिटन टेस्ट कैसा हुआ और आपके फिर ये जो मिनी टास्क हैं ये कैसे हुए। एंड सिमिलरली फॉर अगर आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इसी तरीके से मैट्रिक के एग्जाम के वेटेज है, इंटर के एग्जाम का वेटेज है, हाउस जॉब के एग्जाम का वेटेज है। इसके अलावा आपके FCPS के एग्जाम का वेटेज है, कितने अटेम्प्ट्स में हुआ है। वन थिंग दैट आई वांट टू नो वांट टू टेल इज के दोज हु ग्रेजुएट एज एन हाउस इंटर्न और हाउस ऑफिसर फ्रॉम आगा खान आर exempted फॉर द रिटन टेस्ट, जो कि रेजिडेंसी का रिटन टेस्ट होता है। सो अगर आप जी रेजिडेंसी का जो अगर आपने हाउस जॉब AQU से की है और आप नेक्स्ट ईयर में 2 सालों तक होता है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करें सो फॉर 2 years यू आर exempted फॉर द रिटन टेस्ट। जी, सो दैट्स एन एज। अच्छा, देयर इज वन एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन जो मैं आप तीनों से पूछूंगा। आप फाइनली फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में, आई मीन ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो एवरीवन इज कि मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं न्यूरोसर्जन बनूंगा, मैं कार्डियक सर्जन बनूंगा। आई मीन एवरीवन इज लाइक ऑन द टॉप ऑफ जो लिस्ट है, सबके पास वो होता है। हाउ और ये फाइनली और हाउस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर द कॉम्प्रोमाइजेस दैट यू हैव टू मेक। आई एम श्योर कि आप सब लोग, लेट्स से इफ यू आर इन साइकियाट्री या आप न्यूरोलॉजी में हैं, लेट्स सपोज किसी की फर्स्ट चॉइसेस नहीं है ये, शुड वन बी कॉम्प्रोमाइजिंग? जो अपॉर्चुनिटी पहले मिले वो ले लेनी चाहिए और जस्ट स्टिक टू द एजेंडा जो बनाया है? सो व्हाट्स योर थॉट ऑन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? लेट्स डू द रियलिटी चेक कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद सलमान। Yeah, so I think it depends upon your nature. I'm a very stubborn person, though I will stick my ground and I will just, if I'm passionate about something, I would just pursue it. But I've found people to be fine as well. अगर कोई इतनी ज़्यादा preference नहीं है आपकी किसी के specific career choice के अंदर, तो आप खुश रह सकते हो अगर dermatology करके या कोई और ऐसी field करके। तो it's totally your own choice. मेरा ख्याल में for me neurology was always a passion, और so I just stick to what I wanted to do. और पाकिस्तान में start करने का ये थोड़ा सा हमें advantage मिल जाता है कि हमारी अपनी country है. If you're doing a national residency, so you always have a better chance at getting the choice of specialty you want. थोड़ा अगर आप बाहर की बात करो तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि beggars cannot be choosers. That's the general sort of a myth that runs around. So your take is कि no compromise, अपना एजेंडा बनाए, just stick to it. Madiha, what would you say about it? Yeah, okay, you want to add something? The last thing I would add before you go to Madiha is that this is one career path you're going to take through the rest of your life. So don't compromise on anything else. Okay. Stick to what you want to do and what you enjoy doing. So that would be my advice generally no for compromise. somebody who... No compromise. Madiha, compromise or no compromise? I think no compromise, because ये जो आप करें, it's not house job और training के 4-5 साल. This is what you will do for the rest of your life, maybe till you age 60, 70, 80 साल के हो जाएंगे, तब तक आप वही कर रहे होंगे. So अगर आप आज 2 साल बाद इसको करने में खुश नहीं है, तो शायद आप 20 साल बाद भी इसको करने में बहुत खुश नहीं होंगे. So do not compromise. Do what you want to do. Follow your passion, follow your dreams. So बहुत सारी चीजें आपको लोग कहेंगे कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो. जब मैं सर्जरी में आई थी, सबने मुझे कहा कि लड़कियां सर्जरी में क्यों आ रही हैं, और तुम लड़की हो, तुम्हें सर्जरी में आने की क्या जरूरत है, और ये और वो सारी बहुत सारी बातें हुई. But I think I stick to what I wanted to do, and I'm perfectly fine, and alhamdulillah I'm and since we have psychiatrist on board, तो मुश्तबा को इस तरह पूछना चाहिए कि मुश्तबा, पुराना इश्क भूल जाए, नया करना है कि पुराने के साथ ही रहना है? म्यूट पे आप, you're on mute, मुश्तबा. Sorry. Listen, I have seen people who hated the subject when they were in house job or something, and they had to come and they then fell in love. Yeah. And I have seen people
falling out of love with the passion which they had. Love is a very dynamic thing. अब ये एक बड़ी philosophical सी गुफ्तगू हो जाएगी. I still think you should always opt for the thing which you want to, but you need to understand there is always a chance that you may fall out of love with that thing. There's always a chance that you may develop love for something completely new. देखिए, people get married again. 2 शादियां भी करते हैं, इश्क शादी के बाद भी 4 कर लेते हैं. अच्छा, वो तो मोहब्बत तो हो सकती है ना. इश्क वाली बात मैंने सिर्फ इस्तारे के तौर पे कही थी. You don't have to go there literally. Okay, before we wrap up, there's one question regarding pharmaceutical careers. So I would like to tell everyone that in the days to come, we plan to do separate webinars, meetings. That one will be for UK, Ireland theme hogi, USA ki hogi. Then we'll go to these other non-clinical scenarios also. And before we go, and there's a poll, 3 questions that I would like to run, and I would like my audience to poll into it. So just to have some basic idea about the event that we had. So if you can just start choosing an option here, every one of you will give 30 seconds or so. तो आप इसमें से अपनी choice करेंगे तो हमें जरा सी थोड़ी सी अपने end पे we'll have an idea about our audience. And in the meanwhile, you can also search for Planet Hamdard at Facebook if you're on Facebook. आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. So because all these activities we are starting from there are a lot of people there. आपको you are looking for guidance, assistance, mentorship. I mean, you just drop some of your queries there, and there will always be someone there जो आपको help out करने के लिए and to give you a good suggestion about it or everything. And they're almost okay. Well, we'll just share this. So it seems, so I'm very happy to look at the results के हमें जो हमने target किया था, majority we have from our house shop. That is very encouraging to see. And I will just have another poll if I can launch, and there's another poll. Yeah, so you can just say simple yes or no, or if you're not sure, that's okay. It's totally up to you. Facebook page है जी Planet Hamdard. You can just search it and you can join Planet Hamdard. Zahir, this is Ali Sayyed. Thank you so much. Just wanted to make one clarification. Planet Hamdard को search नहीं कर सकते. It's supposed to be a secret group. Okay. From the very beginning, we tried to make it only and only for Hamdard graduates. Okay. लेकिन अगर किसी को join करना है, they can have somebody who's already a member. Okay. Ask them to add themselves to the group. Okay. And one of the 8 moderators can then approve them. All right. So, okay. So there's a majority that wants to do postgraduate in Pakistan. And there's one last question before we wrap up our session. And the most important one, हमारे लिए बहुत important है. So, this क्योंकि इसके बाद हमने जो down the road हमने planning की हुई है, this will be very important for us to know. Oh, we are scoring 100% so far. So I think this is more than very encouraging. Very encouraging. Okay, on this note, Ali bhai, you have anything else to add? I forgot to tell about Ali Sayyed. Ali Sayyed, just let me give you a small intro. He's from the second batch, 2000 batch, and he is working as an attending physician at Yale New Haven Hospital in USA. He's also the clinical assistant professor there in Yale School of Medicine. Ali bhai, your concluding remarks, and then we can just conclude the session. I think, thank you so much, Zahir, for doing this, and all the participants and all the audience members. This turned out, I think, much better than I was expecting. Okay, since you said कि Planet Hamdard में लोगों को add करना है, there are a lot of questions. अब फिलहाल वो किसको approach करें कि वो add हो सके उस group में? Right. So from the very beginning, we've had a few incidents where non-Hamdard people joined. अगर वो other physicians हो या other medical students हो, it may not be that big a deal. लेकिन often लोगों के privacy के concerns होते हैं, especially the ladies, and that has been an issue in the past. तो अब हमने क्या किया है कि it's not searchable. You cannot just add, क्योंकि लोगों की identities को verify करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो अब जो process है वो ये कि देखें, जैसे मैं अगर हमदर्द का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं प्लानट हमदर्द के मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जहीर हैं और जहीर मेरे दोस्त हैं,
तो मैं जहीर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जहीर आप मुझे ऐड कर दें प्लेनेट हमदर्द में, और जब उसकी इनविटेशन आएगी, फर्ज कीजिए अबू बकर जलील जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन आएगी कि अबू बकर वांट्स टू ज्वाइन प्लेनेट हमदर्द, और नोटिफिकेशन के साथ ये होगा कि ही वाज इनवाइटेड बाय जहीर। ठीक है, तो आई कैन कंफर्म विद जहीर, जहीर डू यू नो अबू बकर जलील एंड इज ही जेन्युइनली एक हमदर्द का ग्रेजुएट और हमदर्द का स्टूडेंट, and if you can confirm for me, then I will just add you. Okay. Let's easy करते हैं. I have the list of registrants with me. Everyone, मैं आपको अपना email address, I'll drop in my email address in the chat box. You just send an email to me and I will reconfirm कि आप हमारे registration, क्योंकि आज तो majority I believe यहाँ सारे हमदर्द वाले हैं, so I'll get to you, all of you to in that group. आप मुझे email कर दीजिए, so not a bigger deal, हम उसको कोई ना कोई कर लेंगे. And before we go again, let me remind you again, let's say 2 weeks from now, maybe I don't have the exact date with me right now, we'll be talking about post-graduation opportunities in the UK or Ireland for that matter. Then we'll have a separate meeting that will be addressing post-graduation issues in USA, and maybe Canada will include Canada, or maybe we'll do a separate one for that, I'm not sure right now. And then we'll have another meeting that's regarding non-clinical post-graduation scenarios, क्या कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए, so we'll be talking about that. So looking forward or having all of you there too, and thank you very much to all our Dr. Salman, Madhiya and Mushtaba. He was joining us from this clinic. Ali Sayyed, thank you very much for pushing us to do this, and looking forward to have all of you for our Can I next... add something? Yeah, sure, why not? You can do the conclusion. Yeah. Okay. कुछ questions यहाँ, I was scrolling through the chat box and I saw some questions. So those who are new to the FCPS and MCPS system, there's a small advice that you can go to CPSP's website, जिसका मैंने link इस chat box में already share किया हुआ है. So you can get an idea कि किस specialities में होता है, क्या उसमें उन्होंने बहुत छोटे-छोटे flow charts बना के आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि what the structure is, और किस कब क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम की और इस तरह की चीजें. सो दैट विल गिव यू एन स्मॉल आइडिया या एक क्रूड आइडिया दे देगा कि व्हाट इज एफसीपीएस ट्रेनिंग या एमसीपीएस ट्रेनिंग is all about. So and एक चीज ये, दूसरा कुछ लोगों ने AQ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए. So AQ की वेबसाइट के ऊपर there is a link for पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, जिसमें हाउस जॉब एंड रेजिडेंसीज के बारे में, जिसमें वो ऑफर करते हैं फील्ड्स वगैरह, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उनके क्लोजिंग डेट्स, अनाउंसमेंट्स, वो सारी चीजें that you can check. And there was another thing that I wanted to share which I just forgot. Sorry. Okay, no problem. Okay, on this note, Dr. Salman, Dr. Salman, you want to add something before we leave? I would just add best of luck to everyone. Yeah. Thank you very much for inviting me to speak on this occasion. Or this is actually just wanted to thank, or I've always wanted कि यार कभी दुनिया में, कभी जिंदगी में कोई ऐसा मौका मिले कि अपने एलुमनाई से इस लेवल पे आके आपको बात करने का मौका मिले. So it was my first time, an interesting experience for me as well. So thank you for inviting me, and good luck with what you're doing. Best of luck. Thank you very much. Last thing I can suggest. So the last thing which when I was preparing my talk and I wanted to suggest was कि आप नहीं, अगर कोई बड़ी programs होते हैं UK आयरलैंड के अंदर, हमारी alumni-ship इतनी ज़्यादा अभी strong हो गई है, और इसमें ऐसे लोग हैं who want to sort of take people and mentor people. तो अगर आप जो organizers हैं इस इन lines पे सोचें कि आप 2 या 3 लोगों को per year या per 2 years or 3 years अपने साथ tag along कर लें, कि यार किसी की अगर क्रिटिकल केयर की एस्पिरेशन है तो अली भाई 2-3 लोगों को ले लें, 4th ईयर फाइनल ईयर से. किसी की न्यूरोलॉजी की वो है एस्पिरेशन है तो ले लें. तो न्यूक्लियर मेडिसिन, तो ये यूके और आयरलैंड में दैट्स द प्रिवेलेंट नॉर्म. तो अच्छी चीज आपको हमेशा जो है थोड़ी सी अपने मिरर करनी चाहिए. सो दैट्स जस्ट माय सजेशन. You guys can. So that's a very good suggestion. Okay, everyone, thank you so much, and see you in the next game match. Thank program. You. Good luck, Bye-bye. everyone. And good luck to everyone. Yeah. Bye.